Hi everyone, Namaskar. In this particular video, we are going to talk about the cheetah reintroduction project that has been launched recently. And the reason that I am talking about this topic today is because today, that is 4th December, is marked as International Cheetah Day. तो आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है. एंड दिस इज़ द रीज़न, इसलिए आज हम चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो कि इंडिया में लाया गया है कुछ दिन पहले, उसके बारे में बात करेंगे. Right, so let's proceed and let's talk everything about this project. Let's talk about the historical evolution in the conservation projects that India has gone through, and how has cheetah declined and how are they coming back again via this introduction project. So approximately 50 cheetahs are to be reintroduced in the national parks over 5 years. So, approximately 50 cheetahs are to be reintroduced. 50 चीता जो है वो वापस लाए जाएंगे over the period of 5 years. तो 5 साल के अंतर में 50 चीता जो है वो रीइंट्रोड्यूस किए जाएंगे कई कुछ सेलेक्टेड नेशनल पार्क है वहाँ पे. और इस प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो है एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता. तो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट is to be fulfilled in the coming 5 years, and 50 cheetahs as of now, as the project has stated, 50 cheetahs are to be reintroduced in several national parks. So India is going to be home once again to the majestic presence of cheetah. The world's fastest land animal, ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रीइंट्रोड्यूस चीता अंडर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया. तो बेसिकली there is information related to the coexistence of humans and cheetah. तो human और cheetah, इंसानों के और cheetah के बीच का जो existence रहा है वो बहुत ज़्यादा dangerous या बहुत विवाद वाला कभी नहीं रहा है. There has been a very low impact problems or very nil मतलब zilch problems in between humans and चीता के coexistence में. We'll further see. So project cheetah aims to bring back independent India's only extinct large animal. Yes. So independence के बाद, in fact, if we go by the history of the decline or extinct of cheetah from India, we'll find that approx near the freedom struggle and approaching towards the freedom, we'll find that the major extinction of cheetah happened. And a very sporadic view, a very spotted view, मतलब few of the views of cheetah have been found in 70s, but those were not found in India. तो basically अगर हम history पे जाएं, इतिहास में जाएं और देखें कि इनका जो extinction हुआ है, इनके जो नंबर्स में कमी आई है, कैसे ये जीरो हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो दैट वुड बी अराउंड इंडिपेंडेंस ओनली. तो इसलिए इस प्रोजेक्ट में ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का ये पहला जो लार्जेस्ट एक्सटिंक्ट मैमल है, इसको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू. सो इंडियाज ओनली एक्सटिंक्ट लार्ज मैमल, द चीता, will be brought back, and as a part of the project 50 cheetah will be reintroduced. This is what has been said by Ministry of Environment and Forest. So cheetah happens to be only large carnivore that got completely wiped out from India, mainly due to overhunting and habitat loss. तो basically जो दो major reasons हैं cheetah के wipe out होने के completely, first one being overhunting and second is being habitat loss. So action plan highlights the nation's preparedness in bringing cheetah back.
Conservation of cheetah has a very special significance for national conservation ethic and ethos. The very name cheetah originates from a Sanskrit word meaning the spotted one. तो चीता का जो नाम है, जो चीता शब्द है, वो संस्कृत ओरिजिन का है और इसका मतलब होता है द स्पॉटेड वन, मतलब जिसको पाया गया हो, देखा गया हो, राइट. तो बेसिकली नेशनल कंजर्वेशन एथिक एथॉस को लेके काफी सिग्निफिकेंट रहेगा ये प्रोजेक्ट. एंड बिसाइड्स कंजर्विंग द बिग cat, the initiative in itself is a boon to the ecosystem. How is it going to be a boon to the ecosystem? So cheetah live in open plains. Their habitat is predominantly where their preys live. तो ये वहीं रहते हैं जहाँ इनके preys रहते हैं. I am sure that you people are aware of the food chain और ecosystem में जो चीज़ें चलती हैं, especially food chain if we talk about, and cheetah being the top predator. चीता बीइंग द टॉप प्रेडेटर का मतलब ये होता है कि लार्जेस्ट कार्निवोर एनिमल जिसके ऊपर कोई और प्रेडेटर ना हो या उनका कोई एनिमी ना हो. So cheetah being the top predator, they live where their preys live, which is in grasslands, scrubs and open forest systems. Semi-arid environment में रहते हैं ये, and temperature that tend to be hotter compared to the cooler temperatures. राइट. तो ये इनका एनवायरनमेंट जो उनकी रहती है, जो उनके इकोसिस्टम है जहाँ पे वो रहते हैं, ये उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था. नाउ इन सेविंग चीता वन वुड हैव टू सेव not only its prey base comprising certain threatened species but also other endangered species of the grasslands. जब आप चीता को सेव कर रहे हैं, जब आप चीता को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यू आर सेविंग चीता. In that process, you also have to save their preys. जिन जानवरों को वो खाते हैं, आपको उन्हें भी बचाना होगा आपको. And especially those preys which are on the verge of getting extincted, which are threatened, right? तो along with reintroducing cheetah, जब आप चीता को बचा रहे हैं, चीता को वापस लेके आ रहे हैं, you also need to save their preys and especially the one who are on the verge of getting extinct. So it is also observed that among large carnivores, conflict with human interest is lowest for cheetah. This is what I have been telling you. Conflict with human interest is lowest for cheetahs. They are not a threat to humans and do not attack large livestock either. So they are not a threat to human. उनका human cheetah का जो coexistence है वो threatful नहीं है, उसमें बहुत threatening नहीं है वो, और they do not attack large livestock either. ठीक है, तो बड़े जानवरों को भी वो अटैक नहीं करते हैं. Now let's move on to the historical background as to how they got extincted, और पहले past में during the freedom struggle or when we were on the verge of being free from the British, जब आज़ादी मिल रही थी हमें, उस समय भी जो चीता का स्टेटस था, और उस समय जब नंबर्स डिक्लाइन होने लग गए बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. पहला, उनकी इकोसिस्टम को डेंजर में डाला गया, उनकी इकोसिस्टम को बर्बाद किया गया, और दूसरा ओवर हंटिंग. तो इन 2 कंडीशंस की वजह से वो एक्सटिंक्ट हुए थे. However, so if we talk in the context of India, despite of the immense demographic pressure, जनसंख्या दबाव के बावजूद भी इंडिया में सिर्फ एक लार्ज कार्निवोर या एक लार्ज मैमल है जो कि एक्सटिंक्ट हुआ है, राइट. तो अगर जावा और सुमात्रा के जो लार्ज डायनासोरस हैं, जो कि वैसे भी जिनका एग्जिस्टेंस बहुत पेरिफेरल था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, दे एग्जिस्टेड ओनली इन द ईस्टर्न रीजन्स ओनली एंड देयर एग्जिस्टेंस वाज वेरी पेरिफेरल. अगर हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, सो टिल डेट देयर हैज ओनली बीन वन मैमल विच हैज गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, विच इज चीता, और जिसका एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, राइट. तो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंट्री के इंडिपेंडेंस के वक्त से ही, सिंस द कंट्री हैज गॉट इट्स इंडिपेंडेंस सिंस 1947, डिस्पाइट ऑफ द इमेंस डेमोग्राफिक प्रेशर, इंडिया हैज लॉस्ट ओनली वन लार्ज वाइल्ड मैमेलियन स्पीशीज सिंस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस.
और जैसा कि हमने बताया, अगर जावन और सुमात्रन राइनोसोरस को हम एक्सक्लूड कर दें, जिनका एग्जिस्टेंस वैसे भी बहुत पेरिफेरल था, बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं था, तो इंडिया हैज़ नॉट लॉस्ट अ लार्ज मेमिलियन स्पीशीज इन हिस्टोरिकल टाइम्स एक्सेप्ट वन विच इज चीता. So this animal, cheetah, which is charismatic in its own spirit, in its own right, therefore also has a very special significance for national conservation ethic and ethos. The very name of the animal cheetah originates from Sanskrit word meaning the spotted one. हमने अभी देखा था. And one point which I would like to mark here, ये historical और ancient art and culture point of view से काफ़ी important है. It is that जो नियोलिथिक केव पेंटिंग्स हैं सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे those paintings depict चीता. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नियोलिथिक केव पेंटिंग्स में सेंट्रल इंडिया की जो पेंटिंग्स हैं, दे डेपिक्ट चीता. उन पेंटिंग्स पे आपको चीता की पेंटिंग देखने को मिलेगी, चीता के इमेजेस देखने को मिलेंगे, राइट. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये historical point of view से. Now coming on to the restoration of cheetah. Restoration of cheetah के ऊपर बात करते हैं. How is it going to be done and what sort of model will the government follow, और किस तरीके से चीज़ें की जाएंगी. So restoration will be part of a prototype or model for restoration of original cheetah habitats एंड देयर बायोडाइवर्सिटी. तो उनके जो जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट है, जो बायोडाइवर्सिटी है, एंड जिस तरीके का मतलब उनके जो प्रे होंगे, उनका जो इकोसिस्टम जिस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, टेम्परेचर, सेमी एरिड, जैसा भी माहौल होता है, जैसा भी वातावरण होता है उनके एग्जिस्टेंस के लिए, दैट वुड बी रिस्टोर्ड, हेल्पिंग टू स्टेम द डिग्रेडेशन एंड रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नाउ अंडरवे. लेसन्स लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस विल बेनिफिट मैनेजमेंट ऑफ दीज इकोटाइप्स. तो इस प्रोसेस से जो भी हमें लेसन्स मिलेंगे वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे इकोटाइप्स को मैनेज करने के लिए. एंड most overused, least managed and yet most productive biomes in the country. Dry grasslands and open forest are underrepresented in the national network of protected areas. तो protected areas और national parks को basically restore किया जाएगा इस prototype और model के ऊपर. Now let's have a look on some of the advantages that this project would give us. So while the reintroduction project, while reintroducing cheetah back into the country, what sort of advantage we are going to get? इस प्रोजेक्ट से हमारी इकोसिस्टम, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे क्या हमें फ़ायदा होने वाला है? लेट्स टॉक अबाउट इट. तो अमंग लार्ज कार्निवोर्स, कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन इंटरेस्ट आर लोएस्ट. वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट. ब्रिंगिंग बैक अ टॉप प्रीडेटर restores historic evolutionary balance, resulting in cascading effects on various levels of ecosystem. As I have already told you, top predator means there is no natural predator over this animal, राइट. तो चीता के ऊपर इट इज ऑलरेडी अ टॉप प्रेडेटर, और इसके ऊपर इसे खाने वाला, इसे प्रे करने वाला कोई एनिमल एज सच नहीं है, नेचुरल प्रेडेटर कोई नहीं है. सो बीइंग अ टॉप प्रेडेटर, बीइंग द लार्जेस्ट कार्निवोरस एनिमल, इसको अगर हम रिस्टोर करते हैं, दिस विल ब्रिंग द इवोल्यूशनरी हिस्टोरिक बैलेंस in the cascading effect. Now what do I mean by the term cascading effect of ecosystem? देखिए, जो फूड चेन होती है, आप आई एम श्योर यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट. सो फूड चेन, बाय फूड चेन आई मीन कि फूड चेन में आपके प्रोड्यूसर लेवल से ऑर्गेनिज्म शुरू होते हैं और वो टॉप एपेक्स प्रेडेटर तक जाके खत्म हो जाते हैं. सो देयर इज अ चेन जहाँ पे प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और टॉप एपेक्स प्रेडेटर तक जाके खत्म हो जाता है. सो फूड चेन में जो आपकी इकोसिस्टम में कास्केडिंग इफेक्ट है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म कास्केडिंग इफेक्ट? Cascading effect in ecosystem means the series of secondary extinctions happening because of the primary extinctions. So cascading effects mean a series of secondary extinction that has been triggered by a series of primary extinctions of a top predator. तो अगर
टॉप प्रेडेटर का एक्सटिंक्शन हो रहा है तो अल्टीमेटली जो सेकेंडरी जो सीरीज ऑफ एक्सटिंक्शंस होंगे वो भी होते जाएंगे. ऑल राइट, सो कास्केडिंग इफेक्ट को भी बचाया जाएगा अगर इफ वी ब्रिंग बैक द टॉप प्रेडेटर in the ecosystem, and it will ultimately lead to better management and restoration of wildlife habitat जैसे grassland, scrubland and open forest ecosystem, conservation of cheetahs, prey and sympatric endangered species. So there are many species जो कि sympatric endangered हैं, and there are many preys जो चीता के preys हैं that are on the verge of being extinct. So they will also be saved. And a top-down effect of a large predator. So predation is a top-down force because effects of predators start at top of the food chain and cascade downward to the lower trophic level. मतलब है कि large predator, top predator से जब हम नीचे producer तक आते हैं, if we come down to from top predator to producer level in the food chain, in the food web food chain series, right? तो टॉप प्रेडेटर से टॉप प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर की सीरीज में जब हम आते हैं तो वो टॉप डाउन इफेक्ट देता है. सो दैट वुड ऑल्सो बी सेव्ड एनी हाउ वाइल दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू हैपन. एंड चीता पॉपुलेशंस हैव very little space for expansion in Africa. There's a very huge advantage of cheetah being introduced in India. India में introduction का एक बहुत बड़ा advantage है, वो ये है कि अफ्रीका में expansion को लेके काफ़ी doubt आया था कि बहुत कम space है, and the protected landscapes of India offer this space within the cheetah's historical range. We'll talk about the historical range of cheetah, जहाँ पे cheetah independence से पहले पाए जाते थे. So in our effort to bring the cheetah back to India, we aim to achieve both the biological objectives. Now, what are the biological objectives? First one being re-establish ecosystem function role of cheetah in representative areas of its former range. तो ecosystem functioning start हो जाएगी. cheetah being a top predator, उसके जो प्रेज हैं, उसके बाद जो टॉप डाउन इफेक्ट से जो टॉप प्रेडेटर से लेके प्रोड्यूसर लेवल तक का जो इकोसिस्टम है दैट वुड बी मेंटेन्ड, दैट वुड बी इन्हांस्ड, उसकी फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी. एंड सेकेंडली कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल एफर्ट टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ चीता एज अ स्पीशी. तो एज अ स्पीशी ऑल्सो इट वुड कंट्रीब्यूट टू अ ग्लोबल एफर्ट. Now let's talk about the historical range of cheetah in India. तो कहाँ किन ranges में इंडिया में पहले before the independence cheetah जो है वो मिलते थे. Historical range of cheetah in India encompass the entire country. तो they have been found in entire country except the high mountains. We'll further see कि 200 जो इनका एलिवेशन लेवल है वो 200 मीटर से 2000 मीटर ही है, उसके ऊपर ये नहीं मिल सकते. सो एक्सेप्ट हाई माउंटेन्स, कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन फ्रॉम वेस्ट ऑफ बंगाल इन ईस्ट to west of Pakistan into Afghanistan and Iran in the west, and from Punjab in the north to northwestern and Tamil Nadu in the south. तो वो पूरे कंट्री में पाए जाते थे except these regions, except the mountains, high mountainous regions, the coast, the north east regions, right? तो यहाँ पे बस नहीं मिलते थे, बाकी पूरी कंट्री में हमें इन्हें देखने का अवसर मिला है. और the main reasons for the decline of cheetah in India were, कौन से reasons हैं जो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से चीता एक्सटिंक्ट हुए, डिक्लाइन हुए इंडिया में. फर्स्ट इज लार्ज स्केल कैप्चर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द वाइल्ड फॉर कोर्सिंग. कोर्सिंग इज अ स्पोर्ट गेम, एक स्पोर्ट गेम होता है जहाँ पे हंटिंग की जाती है. हंटिंग गेम है बेसिकली ये, बाउंटी एंड स्पॉट हंटिंग, एक्सटेंसिव हैबिटेट कन्वर्जन अलॉन्ग विद कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन इन प्रे बेस. तो ये एक स्पेसिफिक मेजर रीजन है. अगर प्रे बेस में डिक्लाइन होगा तो ऑब्वियसली इनका जो टॉप प्रेडेटर है दैट इट्स पॉपुलेशन वुड बी अफेक्टेड. देन द लास्ट cheetahs in the wild were recorded in 1948, where 3 cheetahs were shot in Sal forest of
कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो लास्ट बिल्कुल जो सबसे लास्ट में चीताज जो मिले हैं इंडियन रेंज में, वो मिले हैं साल फॉरेस्ट में इन छत्तीसगढ़, जहाँ पे 3 चीता को मारा गया था विद अ फ्यू स्पोराडिक रिपोर्ट्स फ्रॉम सेंट्रल एंड डेक्कन रीजन टिल मिड 1970s। तो स्पोराडिक रिपोर्ट्स थे, दे वर नॉट इन ह्यूज इन नंबर्स, एक दो पाए गए होंगे कभी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स दैट हैज बीन टेकन प्लेस, जब से वो डिस्कशंस और प्रोटेक्शंस के प्रोग्राम्स जब से वो शुरू हुए इन इंडिया सिंस 1970s टिल 2020 और 22 अभी तक जो रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की बात हुई है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, उसके एवोल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग एक्ट्स और अलग अलग बॉडीज मिनिस्ट्रीज ने काम किया है और कैसे जो है चीता को वापस उनकी पॉपुलेशन को ले आने के लिए बात की गई है। सो द प्लाइट ऑफ चीता इन इंडिया वाज एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वे बैक इन 1942 ड्यूरिंग द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पहली वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग थी 1952 में, वहीं पे डिस्कशन शुरू हुआ था और वहां पे ये कहा गया था, इट वाज कॉल्ड फॉर असाइनिंग स्पेशल प्रायोरिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चीता इन सेंट्रल इंडिया एंड अ बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन टू प्रिजर्व द चीता वाज सजेस्टेड। सो 1952 5 साल इंडिपेंडेंस के बाद से जब पहली वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग हुई थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वहीं से चीता कंजर्वेशन के ऊपर बात शुरू हो गई थी। एंड subsequently negotiations have been commenced with the Shah of Iran for bringing the Asiatic cheetah to India in exchange for Asiatic lions। तो ईरानियन जो चीता हैं, जो एशियाटिक चीता ईरान में पाए जाते हैं, वहाँ के जो शाह थे उनसे नेगोशिएशंस किए गए, उनसे बातें की गई कि हम आपको एशियाटिक लायंस प्रोवाइड करेंगे एंड यू गिव अस फ्यू ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक चीता। सो अराउंड द सेम टाइम this was happening somewhere around 1970s. So around the same time Wildlife Protection Act was enacted in 1972. Wildlife Protection Act of 1972 was enacted which outlawed all forms of hunting, जिसने कानूनी तौर पे बिल्कुल गैर कानूनी बता दिया किसी भी तरीके की हंटिंग को। अगर आप किसी भी तरीके की हंटिंग कर रहे हो, इट वुड बी इलीगल एंड कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द साइंटिफिक रीजन। तो साइंटिफिक रीजन, except for scientific reason and if an animal is being a threat to human population, these are the two reason जहाँ पे ये लॉ जो है वैलिड नहीं था। अदरवाइज किसी भी तरीके की हंटिंग को आउटलॉ कर दिया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने। So subsequently with establishment of a network of protected areas, इसके बाद क्या हुआ आफ्टर 1972 थ्रू दिस एक्ट, जब प्रोटेक्टेड एरियाज के नेटवर्क बढ़ने लग गए इंडिया में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन एंड ड्रामेटिक चेंज इन कंजर्वेशन अवेयरनेस इन द कंट्री, इंटर आलिया द ओरिजिनल कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ चीता इन इंडिया हैज बीन एडिक्वेटली एड्रेस। सो जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इनैक्ट किया गया, उसके बाद नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज को इंक्रीज किया गया। The discussions, effective implementations and the immediate और original cause of extinction उसको address किया गया, उस पर बात की गई, उसको address किया गया कि what have been the reasons, जो कि mainly hunting थे और habitat loss थे। So इसके बाद बात आती है 2009 के टाइम पे, जब एक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की डिस्कशन हुई थी, जहाँ पे गजनेर राजस्थान में एक 2 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसको कि वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अटेंड किया था। दे वर एक्सपर्ट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ environment and forest and then the representatives from the state governments of prioritized former cheetah range states, जो कि mainly गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश थे। तो ये 2 दिन की एक इंटरनेशनल वर्कशॉप थी गजनेर में 2009 में। वहां पे फिर से चीता को वापस लाने का डिस्कशन स्टार्ट किया गया था 70s के बाद बेसिकली।
राइट तो एक्सपर्ट ने इस मीटिंग में, इस 2 दिन के इंटरनेशनल वर्कशॉप में, व्हाट द एक्सपर्ट्स एग्जैक्टली ओपिनियन, सो दे वर ऑफ अ कंसिडर्ड ओपिनियन दैट एस्टैब्लिशिंग चीता पॉपुलेशन इन इंडिया वाज feasible, taking into account the presentation made by WII, that is Wildlife Institute of India, and it was opined that further detailed surveys and analysis can be carried out. तो आगे इनका ओपिनियन यही था कि और भी डिटेल सर्वे और एनालिसिस की जानी चाहिए कुछ एरियाज में जहां पे आप शॉर्टलिस्ट करें कि इन एरियाज में री इंट्रोडक्शन पॉसिबल है और कंफर्म करें, राइट प्रायोरिटी दें उन एरियाज को, कंफर्म करें कि दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर द री-इंट्रोडक्शन पर्पस. So, keeping in view the small Asiatic cheetah population of Iran, from which sourcing was not advisable. So, Iran में you will find Asiatic cheetah. Which are the small population, keeping in view the small Asiatic cheetah population of Iran, from which sourcing was not advisable, and genetic similarity between Iranian and African cheetah, the assembly was of opinion that African cheetah should be used for introduction to India. तो जब असेंबली ने ये देखा कि ईरान में जो छोटे एशियाटिक चीता की पॉपुलेशन है उनकी जेनेटिक सिमिलैरिटी और अफ्रीकन जेनेटिक सिमिलैरिटी में काफ़ी अंतर है, इनफैक्ट द इकोसिस्टम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ चीता पॉपुलेशन टू सर्वाइव इन इंडियन इकोसिस्टम, उसके लिए अफ्रीकन चीता इज़ मोर सूटेबल इन कंपेरिजन टू एशियाटिक चीता ऑफ ईरान. तो असेंबली ने ये ओपिनियन दिया कि वी शुड री इंट्रोड्यूस चीता फ्रॉम अफ्रीका एंड नॉट फ्रॉम ईरान, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा थी एंड दे आर दी स्मॉल पॉपुलेशंस, वहाँ पे वो सूटेबल नहीं होंगे एंड देयर शुड बी कोलैबोरेशन एंड सिनर्जी इन बिटवीन India and Iran in the conservation of cheetah in Asia, and India should learn from the experience of Iran, right? Now coming to the 10 potential sites. अच्छा, these sites जो अभी रिकॉग्नाइज की गई हैं इंडिया में, जो रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और जो 10 साइट्स हैं जहाँ पे चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, these sites have been identified and selected by the IUCN itself. So the 10 potential sites evaluated for the feasibility of establishing cheetah populations in India based on IUCN guidelines that consider species viability consider कर रहा है ये based on demography, genetics and socio-economics of conflict and livelihoods. तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे जो देखा गया है कि बिना किसी चेंज के, ज़्यादा चेंजेस के, द मोस्ट सूटेबल नेशनल पार्क इज कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश. इसको सबसे पहले सेलेक्ट किया गया है. वॉज कंसिडर्ड रेडी फॉर रिसीविंग चीता विद द लीस्ट मैनेजमेंट इंटरवेंशंस सिंस लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन डन इन दिस प्रोटेक्टेड एरिया फॉर री इंट्रोड्यूसिंग एशियाटिक लायंस. यहाँ पे एशियाटिक लायंस ऑलरेडी मौजूद हैं और इनके री इंट्रोडक्शन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में समय दिया गया है, खर्च किया गया है. इसलिए प्रोटेक्टेड एरिया जो कूनो नेशनल पार्क है, दैट इज द बेस्ट सूटेबल एंड रेडी फॉर द रीइंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता हियर, राइट. तो जैसा IUCN की गाइडलाइन थी उसी के ऊपर बात की गई है. और What happened in 2020? 2020 में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई थी रिलेटेड टू द चीता इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया विच इज बीइंग ओवरसीन बाय NTCA. तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि चीता इंट्रोडक्शन इन इंडिया इज बीइंग ओवरसीन बाय NTCA, विच इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
guided and directed by committee of experts designated by Supreme Court of India. So directions जो Supreme Court ने दिए थे इस प्रोजेक्ट को लेके, चीता इंट्रोडक्शन को लेके, उसमें उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि कौन कौन सी बॉडीज, कौन कौन से स्टेट्स और NTCA, MOE, FCC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट देयर विल बी अ कमिटी, और उस कमिटी में जो एक्सपर्ट्स होंगे वो डेजिग्नेटेड होंगे बाय सुप्रीम कोर्ट. एंड हेयर WII which is Wildlife Institute of India, इनको एक टास्क दिया गया for providing technical assistance and coordinating the project of introducing the cheetah, headed by Dr. YV Jhala with team members. There are certain team members, the name are not very much necessary, by NTCA. तो ये team members National Tiger Conservation Authority के होंगे, and expert committee on cheetah introduction for a period of 5 years. तो पहला जो फेज है, फेज 1 इज फॉर 5 years, एंड ये कमिटी है NTCA की, और ये कमिटी है NTCA की, एंड देयर विल बी मेंबर्स जिनको कि सेलेक्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट खुद. तो NTCA के मेंबर्स होंगे और एक्सपर्ट कमिटी होगी, राइट. नाउ subsequently additional 5 sites, so apart from Kuno National Park, another 5 sites जिनको कि आइडेंटिफाई किया गया है वो है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैंसरोरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. इनको असेस किया गया है बेस्ड ऑन IUCN गाइडलाइंस for reintroduction as mentioned above by Wildlife Institute of India on the request of state governments, along with reassessment of Kuno National Park in Nora Dehi and Kuno National during the year of 2020 and 21. तो कई states ने request किया WII को कि आप हमारे state में आए, नेशनल पार्क्स को assess करें, और अगर यहाँ पे suitable है तो यहाँ पे भी इनका habitat देखा जाए, इनको reintroduce किया जाए. Now let's talk about the eco-climatic niche model for cheetah. Ecosystem और जो इनका climatic niche होगा चीता का इंडिया में, वो कैसा होगा, कितना ह्यूमन इम्पैक्ट होना चाहिए, कितना बाकी एनिमल्स, बाकी प्रेडेटर के साथ इनका को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट क्लाइमेट, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, एलिवेशन लेवल क्या होना चाहिए, स्पीशी लेवल क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे. इनका नीश जो है वो कैसा होना चाहिए. Let's have a look. So cheetah habitat suitability was best explained by grassland, scrub and open forest system. Right, grassland, scrub and open forest system, semi-arid environment, very important point, low human impact and temperature that tend to be hotter compared to the cooler regimes. The response curves, ये बहुत important point है, इसको याद रखिएगा, बिकॉज वो ऑप्शंस में कई बार पूछ लेते हैं कि किस तरीके का एनवायरनमेंट या क्लाइमेट सूटेबल है चीता के लिए, कितना टेम्परेचर सूटेबल है. सो अगली जो 2-3 पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इकोलॉजिकल नीश ऑफ चीता. सो पे अटेंशन हेयर. जो रेस्पॉन्स कर्व चीता का देखा गया था, वहां ये देखा गया कि स्पीशीज आर मोस्ट सूटेबल इन दोज हैबिटेट्स विच आर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया. एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स कौन से हैं? सवाना है, वुडी सवाना है, ओपन श्रबलैंड्स है, राइट. अनदर रेस्पॉन्स कर्व ऑफ ह्यूमन प्रेशर. ह्यूमन प्रेशर का जब रेस्पॉन्स कर्व निकाला गया, सर्वे किया गया, वहां हाईएस्ट परसेंटेज जो कंट्रीब्यूशन था वो था 32.1 का उस मॉडल में, जिसका मतलब है हाई सूटेबिलिटी इन एरियाज विद लो ह्यूमन प्रेशर. इनका जो हैबिटेट सूटेबिलिटी है वो हाई थी लो ह्यूमन प्रेशर में, एंड रैपिडली इनकी सूटेबिलिटी डिक्लाइन होती है जहां जहां ह्यूमन प्रेशर इंक्रीज होता है. तो एरिड, सेमी एरिड रीजन, लो ह्यूमन प्रेशर एरिया, दीज आर दी 2 पॉइंट्स. 2 सर्वेज में ये पाया गया.
तीसरा सर्वे जो कि एलिवेशन पे किया गया था, वहां दे फाउंड कि स्पीशीज सूटेबिलिटी इन एरियाज विद एलिवेशन बिटवीन 200 to 2000 meters, not above 2000 meters. And lastly, response curve for minimum temperature का response curve जो है वो देखा गया ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ का मिनिमम टेम्परेचर रिस्पॉन्स कर्व जब देखा गया, वहां ये पाया गया कि जो एरियाज जिनका लोवेस्ट टेम्परेचर 2 डिग्री है या उससे बिलो है, सो एरियाज विच आर हैविंग देयर लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री एंड बिलो 2 डिग्री आर नॉट सूटेबल फॉर चीता. बेसिकली कूलर regimes के लिए दे आर नॉट सूटेबल. चीता हैबिटेट सूटेबिलिटी वॉज लिमिटेड टू एरियाज विद मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 23 to 40 डिग्री सेल्सियस. सो 2 डिग्री से ऊपर एंड 23 to 40 डिग्री से नीचे, राइट इन दोनों के बीच में ही इनकी सूटेबिलिटी सबसे बेस्ट पाई गई है. इन दी वार्मेस्ट मंथ एंड मोस्टली इन सेमी एरिड रीजन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, जो इको क्लाइमेटिक नीश मॉडल जो देखे गए रेस्पॉन्स कर्व्स के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. Now, the niche prediction in India coincided with the historical strongholds of cheetah in India. Analysis shows that climatic niche of cheetah from southern Africa exists in India, with Kuno National Park having high probability of cheetah habitat suitability. इसीलिए Kuno National Park को बिल्कुल ready माना गया है कि immediately यहाँ पे इनके reintroduction का जो है पॉसिबिलिटी वो अच्छा होगा. इफ चीता लोकेशंस फ्रॉम अक्रॉस देयर रेंज वर यूज्ड फॉर एनालिसिस, लार्जर एक्सटेंट इन इंडिया वाज लाइकली टू बी डिपिक्टेड एज चीता हैबिटेट नीश. तो बेसिकली जो इंडिया का एक्सटेंट है वो डिपिक्ट किया गया है कि सूटेबल पाया जाएगा चीता के लिए. मोर और लेस दे आर सूटेबल. Now let's talk about the project goal. तो basically ये project जो है वो इसका goal क्या है? Let's have a look. To establish viable cheetah meta population in India that allows cheetah to perform its functional role as a top predator and provides space for the expansion of the cheetah within its historical range, thereby contributing to its global कंजर्वेशन एफर्ट्स. तो ये बिल्कुल वर्बैटिम जो प्रोजेक्ट गोल है वो यही है. इसको बिल्कुल कंजर्वेशन गोल की तरह, ग्लोबल कंजर्वेशन गोल और ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट की तरह देखा जा रहा है. ऑब्जेक्टिव्स को एक एक करके देखिए. First one is to establish breeding cheetah population in safe habitats across historical range and manage them as a meta population. Second is to use cheetah as a charismatic flagship and umbrella species to garner resources for restoring open forest and savanna system that will benefit biodiversity and ecosystem services from these ecosystem. Third is to enhance India's capacity to sequester carbon through ecosystem restoration activities. Restoring cheetah population would promote the ecosystem restoration activities, और इसके थ्रू कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो इंडिया की, उसको भी एनहांस किया जाएगा. To use the ensuing opportunity for eco-development and eco-tourism to enhance local community livelihoods and to manage conflict by cheetah or other wildlife with local communities, right, through compensation, awareness, management actions to win community support. तो basically ये सारे objectives हैं जो कि mentioned हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव दिया है कि एनटीसीए जो कि टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लेके काम करता है, सिमिलरली दे विल बी वर्किंग फॉर चीता कंजर्वेशन आल्सो. तो एनटीसीए के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए. एनटीसीए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 was amended in 2006 to provide the constituting of NTCA. Now let's have a look on the powers and functions of NTCA. क्या क्या powers हैं? पहला, evaluate and assess aspects of sustainable ecology while ensuring that no environmentally destructive activities such as mining,
is carried out within the proximity of tiger reserves, और अब तो चीता रिजर्व्स भी जो होंगे वहां पे बैन होगी ये ऐसी एक्टिविटी, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. सेकेंड इज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूडिंग फ्यूचर कंजर्वेशन प्लान, estimation of population of tiger, natural prey species, report on untoward happening such as poaching or any other legal activity. तो ये ऐसी भी इंफॉर्मेशन देते हैं. थर्ड इज दे इंश्योर क्रिटिकल सपोर्ट, जैसा कि साइंटिफिक या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल सपोर्ट, हर तरीके के सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम. थर्ड, फोर्थ वन बीइंग फैसिलिटेट ऑनगोइंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जैसा कि स्किल डेवलपमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ टाइगर रिजर्व्स. फिफ्थ इज फैसिलिटेट एंड सपोर्ट टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट इन स्टेट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स through people's participation by supporting similar initiatives. And last is ensure critical support for tiger conservation in India by including scientific, information technology and legal support. हमने देख लिया था, right? तो ये जो basic functions हैं NTCA के वो थे. Now coming to the news, जो कि recent news रही है प्रोजेक्ट चीता के ऊपर. सो पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट ऑन 17 सितंबर 2022 एट कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. एंड आफ्टर ओवर 70 years ऑफ देयर एक्सटिंक्शन, उनके एक्सटिंक्शन के करीबन 70 साल बाद, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ही वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, उसी समय वो एक्सटिंक्ट हुए हैं. और आज़ादी के ऑलमोस्ट 70 साल बाद जब वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, तब 8 cheetahs were landed in India from Namibia. ठीक है, इनको यहाँ पे लाया गया था. चलिए, तो let's also talk about the aims of cheetah translocation in national कूनो नेशनल पार्क. तो जो चीता ट्रांसलोकेशन चल रहा है जो कूनो नेशनल पार्क में, लेट्स हैव अ लुक. तो अमंग्स द 10 सर्वेड साइट्स ऑफ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, कूनो पालपुर नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैज बीन रेटेड द हाईएस्ट. हमने अभी देखा था बिकॉज उसकी इकोनॉमिक सूटेबिलिटी और इकोसिस्टम सूटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, हैबिटेट सूटेबिलिटी काफ़ी हाई थी. दिस इज बिकॉज ऑफ सूटेबल हैबिटेट, एडिक्वेट प्रे बेस. अब इस नेशनल पार्क की थोड़ी सी इन्फो देख लीजिए. कूनो नेशनल पार्क इज 748 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, डिवॉइड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ऑलमोस्ट जीरो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं. फॉर्म्स पार्ट ऑफ शिवपुरी डेसिडुअस ओपन फॉरेस्ट लैंडस्केप एंड इज एस्टिमेटेड टू हैव अ कैपेसिटी टू सस्टेन 21 चीतास. तो इसकी जो सस्टेनेंस कैपेसिटी है वो 21 चीता की है. Kuno is probably the only wildlife site in the country where there has been a complete relocation of villages from inside the park. तो Kuno एक इकलौता ऐसा वाइल्ड लाइफ है पूरे देश का जहाँ से कंप्लीटली पूरे गांव को उठा के बाहर निकाला गया है, उनको बाहर बसाया गया है. वहाँ पे जीरो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं इस समय पे. कूनो ऑल्सो ऑफर्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग 4 बिग कैट्स ऑफ इंडिया, राइट. तो जैसा टाइगर, लायन, लेपर्ड एंड चीता, ये 4 जो है जो बिग कैट्स ऑफ इंडिया हैं, तो कूनो के पास इसका भी प्रोस्पेक्ट है कि वो इनको हाउस कर सकें, अलाउइंग देम टू को एग्जिस्ट इन दी पास. तो पास में ये को एग्जिस्ट भी किए हैं, ये 4 एक साथ भी रहे हैं. What are the other sites जिनको की रिकमेंड किया गया है अपार्ट फ्रॉम कूनो? तो अनदर इज नौरा देही वाइल्ड लाइफ इन मध्य प्रदेश. सेकेंड इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश. थर्ड इज शाहगढ़ बल्ज इन जैसलमेर राजस्थान. एंड फोर्थ इज मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एज फेंस्ड एनक्लोजर राजस्थान. तो ये 4 और साइट्स हैं जहाँ पे देखा जा रहा है. अब कहाँ से ये चीता आ रहे हैं? वेयर आर दीज चीतास कमिंग फ्रॉम? The locally extinct cheetah subspecies of India is found in Iran and is categorized as critically endangered. तो जो locally इंडिया में जो species पाई जाती थी चीता की पास्ट में, वो इस समय ईरान में मिल रही है, लेकिन जो IUCN स्टेटस है वो critically endangered का है, राइट. तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम ऐसी जगह से चीता को अपने पास लाएं
जहाँ पे वहाँ उनके एग्जिस्टेंस को डेट्रीमेंटल कर दिया जाए, वहाँ उनके एग्जिस्टेंस को प्रॉब्लम हो जाए, या वहाँ उनकी पॉपुलेशन क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उनकी पॉपुलेशन कम ना हो जाए, हमें ऐसा भी नहीं करना है. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग एनी सच कंजर्वेशन एफर्ट, जहाँ पे यू हैव टू कीप इन माइंड दैट सोर्सिंग ऑफ एनिमल्स शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल फॉर देयर सर्वाइवल इन द सोर्स एरिया. तो सोर्स एरिया में उनके सर्वाइवल को डेट्रीमेंटल नहीं करना है, उनकी पॉपुलेशन को खतरे में नहीं डालना है. Since it is not possible to source the critically endangered Asiatic cheetah from Iran without affecting its subspecies, India will source cheetah from southern Africa. तो हम साउथ अफ्रीका से ले आएंगे चीता को, which can provide India with substantial number of suitable cheetah for several years, right? अब साउथ अफ्रीका से जब चीता आ रहे हैं तो उनकी स्पीशीज में, उनके पॉपुलेशन में और इंडियन पॉपुलेशन जो पाई जाती थी उसके बीच का थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, क्या था. तो उन दोनों के बीच में चीता फ्रॉम सदर्न अफ्रीका हैव मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइट, विच मीन्स कि बहुत सक्सेसफुल ब्रीड होंगी, बहुत अच्छी, ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि दे आर द मोस्ट एनहांस स्पीशीज, उनके अंदर प्रॉब्लम्स उतनी नहीं होगी. अमंग एक्सटेंट चीता lineages, an important attribute for founding population stock. Moreover, southern African cheetahs are found to be ancestral to all other cheetah lineages including those found in Iran. तो southern African cheetah को के जो पॉपुलेशन है उनको एक एंसेस्ट्रल लीनिएज उनका देखा जाता है ऑलमोस्ट हर जगह के चीता में, स्पेशली विच आर फाउंड इन ईरान. हेंस दिस शुड देयरफॉर बी एन आइडियल रीजन फॉर इंडियाज रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम. नाउ द प्राइमरी एम इज टू एस्टैब्लिश अ फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ चीता इन, मम्मी 2 मिनट रुक जाओ यार. The primary aim is to establish a free-ranging population of cheetah in and around the Kuno National Park of Madhya Pradesh. Further, this population in Kuno National Park will be managed as a meta population with other 2 or 3 established population of cheetah in India, with occasional immigrants brought from Africa as and when needed. Right? तो यहीं पे इनको रखा जाएगा. With the larger goal of this project, जो और भी छोटे मोटे गोल्स होंगे जो प्रोजेक्ट स्ट्राइव कर रहा है वो क्या होंगे. पहला है प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी एंड कंजर्व लोकल फ्लोरा एंड फौना, revive and maintain the grassland and open forest system existing in protected area and adjacent areas in an optimum productive state, and thereby evolve management techniques and practices. आगे हम देखेंगे क्या क्या टेक्निक्स यूज करेंगे ये मैनेजमेंट को लेके. बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन द फील्ड ऑफ हैबिटेट एंड प्रे मैनेजमेंट इन व्यू ऑफ इमर्जिंग नीड्स. तो दीज आर दी अदर स्मॉल गोल्स which the project will strive, and they will use the expertise of Madhya Pradesh State Forest Department in mass translocation of herbivores, particularly black buck, नीलगाय एंड चितल. तो ब्लैक बक, नीलगाय और चितल का ये ट्रांसलोकेशन, मास ट्रांसलोकेशन किया जाएगा इन व्यू ऑफ इमर्जिंग नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, while simultaneously augmenting prey base in Kuno National Park and other cheetah introduction sites. All right, they will conserve and enhance faunal diversity, especially the threatened species such as ghadial, and provide a future safe haven for even more endangered species such as the caracal, great Indian bustard and the lesser florican and larger landscape. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर भी प्रोजेक्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में. CGI और 2-3 अदर जजेस की बेंचेस ने ये एक सजेशन दिया है कि एडवाइस दिया है कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है वैसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी एक प्रोजेक्ट आना चाहिए. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल. Generate benefits for local people through development of wildlife tourism, ancillary activities and develop capacities of local communities. तो ये basically जो local और common objectives होते हैं they will do that. This is the most important aspect of this project, which is monitoring the
चीता पॉपुलेशन थ्रू रेडियो टेलीमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें कई साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं चीता के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो जितने भी चीता हैं, ऑल द फाउंडर चीता वुड बी फिटेड विद सैटेलाइट जीपीएस एंड वेरी हाई VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कॉलर्स। VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कॉलर्स। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कॉलर्स क्या होते हैं? बेसिकली दे यूज अ रिसीवर एंड अ एंटेना। तो रिसीवर और एंटेना के माध्यम से ये एग्जैक्टली लोकेशन जो होगी चीता की उनको ट्रैक कर पाएंगे, और दे विल एनेबल्ड विद अ ग्राउंड डेटा डाउनलोड फैसिलिटी। The formal procedure of procuring radio telemetry equipment, रेडियो टेलीमेट्रिक इक्विपमेंट जो कि हैं आपके रेडियो कॉलर्स, रिसीवर्स, एंटेना एंड डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर would be started well in advance as their shipment may required 4 to 6 months। तो रेडियो टेलीमेट्री रिक्वायरमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो अभी तुरंत शुरू कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट के 4-6 महीने शुरू होने से पहले। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी ये रेडियो टेलीमेट्री और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स के जो डिटेल्स हैं उनको लेंगी, सिंस दे हैव द टेक्निकल नो हाउ अबाउट द प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 एजेंसीज, ये 3 बॉडीज ही रेडियो टेलीमेट्री और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स की डिटेल्स को लेंगी। चीता कब्स जो कि कूनो नेशनल पार्क में आएंगे, जो नए कब्स जो होंगे फॉर एटलीस्ट 2 जनरेशन, तो अगली जो 2 जनरेशन इनकी कूनो नेशनल पार्क में आएगी, दे वुड बी कॉलर्ड प्रायर टू देयर डिस्पर्सल एट द एज ऑफ 16 to 17 मंथ्स। तो जो नए कब्स इस नेशनल पार्क में होंगे, अगली जो 2 जनरेशन होगी, उनको जब वो 16 से 17 महीने में पहुंचेंगे, उन्हें उसी समय पे पहले ही कॉलर पहना दिया जाएगा उनके लोकेशन के लिए। रेडियो टेलीमेट्री वुड असिस्ट इन डेली मॉनिटरिंग ऑफ मूवमेंट, बिहेवियर, प्रेडेशन, conflict and mortality. These are important aspects that need to be monitored to safeguard the introduced cheetah, assess their well-being and evaluate the process of इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेडियो टेलीमेट्री बेस्ड मॉनिटरिंग वुड अलाउ फॉर एक्टिव मैनेजमेंट इंटरवेंशंस इन केस चीता वेंचर इनटू अनफेवरेबल हैबिटेट। तो अगर कभी चीता किसी अनफेवरेबल हैबिटेट में पहुंच जाते हैं, या वो ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके बीच में, उनके इकोसिस्टम में, तो इट वुड अलाउ फॉर क्विक कॉम्पनसेशन डिस्पेंसेशन इन केस ऑफ लाइफ स्टॉक डिप्रेडेशन एंड डिटरमिन कॉजेज ऑफ चीता मोर्टालिटी। तो मोर्टालिटी के ऊपर भी ये काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लास्टली, इफ यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस, तो कूनो नेशनल पार्क चीता के साथ साथ, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, लायन, टाइगर, चीता, इन तीनों का जो बिग कैट्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा हैबिटेट है। तो बीइंग होम टू लायंस एंड लेपर्ड्स, कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड ओवर कोएग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड चीता। तो इन बाकी बिग कैट्स के साथ साथ चीता का भी जो रीइंट्रोडक्शन है, इन तीनों चारों एनिमल्स का कोएग्जिस्टेंस कैसा होगा, उसके ऊपर कंसर्न्स आए हैं। चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट आर हाई, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट। तो एलिमिनेशन के चांसेस हाई हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। द रीइंट्रोड्यूस्ड कैट्स कुड ऑल्सो फेस इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड क्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिकल डिफरेंसेस इन बिटवीन देयर होम कंट्री एंड इंडिया। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनको लेके भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने वल्नरेबिलिटी के चांसेस शो किए हैं। दिस हाउएवर हैज नॉट dimmed the excitement of wildlife enthusiasts who are waiting to catch a glimpse of world's fastest animal running across the Indian grasslands। तो इनका मोटिवेशन डिम नहीं हुआ है। we'll further see कैसे इनके responses आते हैं। Now let's talk about the differences in between Asiatic cheetah and African cheetah। तो एशियाटिक और अफ्रीकन चीता के साइज में, बॉडी में, क्लाइमेट टाइप में, फिजिकल फीचर्स में क्या डिफरेंस है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ये जो है अफ्रीकन चीता है, दिस वन इज द एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल
whereas Asiatic cheetah is critically endangered. If you can clearly see, this has certain dark points and the dark complexion on its face, whereas यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ दे आर लाइट इन कलर. इनका जो फर कलर है वो थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा क्लियर है. आई कलर पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है. दे आर बीइंग द लाइट कलर्ड इन देयर आई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 सबस्पीशीज ऑफ चीता. 4 सबस्पीशीज कौन सी हैं? साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता है एंड एशियाटिक चीता है. राइट, सो दीज आर दी 4 सब स्पीशीज. पहली बार इन कैट्स को जो है जोआन वॉन स्क्रिबर ने 1775 में डिस्क्राइब किया था, और जो कि अफ्रीकन और एशियाटिक चीता इनके हिसाब से डाइवर्ज हो गए थे अबाउट 67,000 years ago, which are evolving now differently because of different conditions. Right, now let's talk about the distribution differences, size differences, क्या क्या है इन दोनों में. तो अफ्रीकन चीता जो है इट इज स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका एंड सदर्न अफ्रीका. विद बिगर टेरिटरी अफ्रीकन चीताज हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन, क्योंकि इनकी टेरिटरी बहुत बड़ी है, इनका पॉपुलेशन भी हाई है एज कंपेयर टू एशियाटिक काउंटरपार्ट्स. ऑन द अदर हैंड एशियाटिक चीता आर only found in small region between Iran and Pakistan. Asiatic cheetah once roamed the whole expanse of Central Asian continent from India to Afghanistan to Pakistan, but उसके बाद उनके numbers decrease हो गए, reduce हो गए. Next, size के बारे में अगर हम बात करें तो Asiatic cheetah is slightly smaller. Asiatic cheetah is slightly smaller and slender than African cheetah. Right? The neck is much smaller and longer. Their legs are also slender, which has many to believe that they could be much faster than the African cousins. However, no data is available to confirm. Asiatic cheetah के जो adult होते हैं they grow about 53 inches in length with a 33-inch tail and weigh up to 119 pounds. और African cheetah on the other hand उनके sturdier necks और legs होते हैं और 84 inches की length होती है उनकी, और weight जो होता है वो 159 pounds तक का पाया जाता है. Right, if we talk about the skin, so Asiatic cheetah has a buff to light fawn color. This is Asiatic cheetah. I already told you कि इनकी जो fur color है, जो buff है, वो light color में आती है, pale yellow skin, and it has more fur on the body, especially under the belly and back of the neck. African cheetah has a light brown to golden fur color that is thicker than the Asiatic ones. Spots are more pronounced on the face and are more densely distributed over the body. तो इनके जो spots हैं वो बहुत clearly pronounced होते हैं इनकी body पे. Right? तो अफ्रीकन चीता के स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिए गए हैं. पॉपुलेशन की बात करें तो अफ्रीकन चीता आर सुपीरियर इन नंबर एज they are estimated that there are about 10,000 of them left in African wild at the moment. Asiatic cheetah क्योंकि critically endangered animal है तो they are less than 100 individuals left in the wild. If we talk about their diet, तो Asiatic cheetah mostly prey on medium-sized prey like goatherd, gazelle, wild sheep and goats, cape hares and chinkara. Asiatic cheetah, they prey on the food sources which limits for Asiatic cheetah. जैसे diversified diet option है इनका as compared to Asiatic cousin, and Africa is home to over 25 species of herbivores. तो वही इनकी डाइट रेंज होती है अफ्रीकन चीता की. राइट, so coming to the conclusion part, relocation, reintroduction projects जो होते हैं they are the very best and they basically restore the integrity of any ecosystem, right? And it's a rapidly growing science which if carried out appropriately has the potential to be a valuable component of a ecosystem. अगर
प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए, तो इट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर एन इकोसिस्टम टू बी मैनेज्ड एंड टू बी मेंटेन्ड. हाउएवर, अगर थोड़े भी कंसर्न्स हुए, थोड़े भी अपलिफ्टमेंट हुए, थोड़े भी टसल्स हुए, तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकते हैं बाकी दूसरे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और इकोसिस्टम के लिए. कोई भी पिटफॉल एग्जिस्ट किया अगर, तो वो टोटल या पार्शियल फेलियर कंसिडर किया जाएगा किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को कंसिडर करने में. एंड दिस एक्शन प्लान डेवलप्ड इन अकॉर्डेंस विद द IUCN गाइडलाइंस एम्स टू इम्प्लीमेंट चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम इन कूनो एंड अदर चीता इंट्रोडक्शन साइट्स बेस्ड ऑन साइंस एंड प्रोएक्टिव मैनेजमेंट. तो IUCN की गाइडलाइंस पे ही बेसिकली जो इंट्रोडक्शन होगा वो चलेगा. और वील सी कि पहले कूनो में, उसके बाद जो बाकी डिसाइडेड साइट्स हैं, जो बाकी मैनेज साइट्स हैं, उन पे कैसे ये इंट्रोडक्शन रिस्पॉन्स देता है, कैसे चीता का री इंट्रोडक्शन रिस्पॉन्स देता है. राइट. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. काफ़ी फैक्चुअल वीडियो है ये, काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं इसमें, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़ एंड टुडे इज़ द इंटरनेशनल चीता डे. So hence this video, it's very important environment के section से. So thank you and I'll see you in the next video.